Okay. Download. I already informed from yesterday and pasted in the groups also, but not Zoom. that's why I called you. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ Zoom. ಇಲ್ಲ. Oh, I know the report. ಕಿಟ್ ಓಪನರ್ ಅವನು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಆಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ನೋಡಿ. Recording in progress. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಣು ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sir, you are able to screen the share, no? Yeah, I'm able to. I'm able to now. Okay. All right. So I think you are able to see the screen now, right? Yes, yes. Okay. So you're supposed to ask me. I make you host. What time we are going to start now? Sir, we are expecting athletes to come now in any time soon, around 10 minutes or 10 minutes more. All right, no, not a problem. Even our people are trying to connect. I think you are not accepting the request, and they are saying that we are trying to. So please go ahead and accept the request. Sir, we have made you only the host, so you will be getting. No, you can. No, you can do it from your end. Yeah, just give me the screen sharing. Rest all you do it from your side. Okay. Because if I would be taking sessions, I won't be able to do that in between, na? Okay. So they can directly join, sir. There is no. Okay, no problem. Ask them to connect. Yeah, remove the password and they can go ahead and they can connect directly. Correct. Right. So all will be coming together or one by one? How they are going to come? No, together, sir. They have to come together, sir. I mean, there are different events, so. Okay. People, set of people. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನ್ ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. You are able to see this now video? Video we are not able to see, sir. There is one video. Just a minute. full screen ಮಾಡ್ಬೇಕು. Sir, when you are displaying the PPT, just make sure you do it full screen, sir. Okay, I'll be doing full screen like this. Just a minute. Just tell me, okay? Once I'll just share that. Let me know. Now is it fine? Banned substance जो था, that was prohibited at all times in competition and out of competition. इस लिस्ट में आता है S0 में आता है नॉन अप्रूव्ड सब्सटेंसेस, S1 में आता है एनाबॉलिक एजेंट्स, S2 में आता है पेप्टाइड हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स और रिलेटेड सब्सटेंसेस एंड माइमेटिक्स। S3 में आता है बीटा 2 एगोनिस्टिक्स और S4 में आता है हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक
मॉड्यूलेटर्स। S5 में आता है डायरेटिक्स एंड अदर मास्किंग एजेंट्स। ऐसे ही एक लिस्ट है प्रोहिबिटेड मेथड्स एट ऑल टाइम। ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं जो कि ड्रग्स हैं, पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जिसकी वजह से ये सब बैंड हैं। एक होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। क्या मेथड्स हैं जो आप यूज करेंगे तो प्रोहिबिटेड है इन कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। उन मेथड्स में उसको कोडिंग किया जाता है M1, M2, M3 इस तरीके से। सो मेथड्स में आता है फर्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। M2 में आता है केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। M3 में आता है जीन डोपिंग। अगर कोई भी ये जो हमने लिस्ट देख रहे हैं प्रोहिबिटेड लिस्ट जो 2022 की है, कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अगर बॉडी में मिलता है इन S0 से लेके S5 तक, वो ADRV रूल के अंडर में आता है। अगर वो कोई भी मेथड अगर यूज कर रहे हैं वो M1 से M3 तक, वो 2022 की प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, दैट काउंट्स एज ADRV। इसके बाद है प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जो इन कॉम्पिटिशन ही है। वो है S6 के हिसाब से स्टिमुलेंट्स, S7 के हिसाब से नारकोटिक्स, S8 के हिसाब से कैनाबॉइड्स, S9 के हिसाब से ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये जितने भी हैं ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है अगर इन कॉम्पिटिशन में पकड़े गए तो। सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, वो आता है P1, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स। किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर बीटा ब्लॉकर ले रहा है कोई आदमी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए, तो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट में बैन है, ना कि सब जगह। और ये जो लिस्ट है ये आपको वाडा की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, क्या क्या उसमें एक जैसे हमने बताया स्टिमुलेंट्स या नारकोटिक्स या हम लोग कुछ भी बता रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स बता रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर नाम के साथ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी वाडा की वेबसाइट पे 2022 की प्रोहिबिटेड लिस्ट में। ठीक है, अब आपको ये चीज शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग सैंपल कलेक्शन प्रोसेस, कि ये सैंपल कलेक्शन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है और आपको उसमें कहाँ सावधानियां बरतनी है। जब आप कई बार सोचते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड ने अभी पूछा कि सर अगर ऐसा कर दिया तो चलेगा क्या, ये कर दूंगा तो चलेगा क्या, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि जो सैंपल कलेक्शन है वो दो तरीके से लिया जाता है। दो सैंपल कलेक्शन के जरिए है, एक है यूरिन और एक है ब्लड। ये बोलते हैं 2 टाइप्स ऑफ डोप सैंपल्स लिए जाते हैं, एक होता है यूरिन और एक होता है ब्लड। नाउ हमारे पास नाडा में कम से कम 150 ट्रेंड डोप कंट्रोल ऑफिसर्स हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, और वो सभी जितने भी बड़े बड़े मेजर स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, वहां पे पास में ही है, अवेलेबिलिटी पे कभी भी जब सैंपल कलेक्शन करना होता है तो वहां पे वो पहुंच सकते हैं। तो डीसीओस हमारे पास एम्पल ऑफ डीसीओस हैं, मोर देन 150 प्लस सैंपल डीसीओस हमारे पास हैं। नाउ एथलीट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कई बार लोग सबको ये डाउट रहता है कि ये सिलेक्शन किया कैसे जाता है, किस तरीके से ये नाडा हमारे को सेलेक्ट करता है। तो उसमें मेनली 3 तरीके होते हैं। एक होता है या तो मेडल कैटेगरी के हिसाब से, दैट मींस कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो उसमें एक कैटेगरी होगा, जैसे कि जो फर्स्ट आएगा उसका सैंपल लेना है, सेकंड आएगा उसका सैंपल लेना है, या फोर्थ आ रहा है उसका सैंपल लेना है। एक तो वो कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है। दूसरा है रैंडम, किसी का भी सैंपलिंग हो सकता है, जो भी एथलीट है कभी भी किसी का भी सैंपल लिया जा सकता है। तीसरा है टारगेट, दैट मींस किसी का एथलेटिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट है, उसमें कोई दिक्कत आई है, या किसी का इंफॉर्मेशन आया है कुछ दिक्कत कि ये सो एंड सो बंदा ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका भी वो अगर वो टारगेट में आता है, टारगेट पूल में, तब भी उसका टेस्टिंग हो सकता है। सो ये 3 तरीके से, मेनली ये 3 तरीके से ही टेस्टिंग किया जाता है। और ये एथलीट का सिलेक्शन कहीं कभी भी, नाडा कभी भी और कहीं भी आपका सैंपल ले सकता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मैं खाना खा रहा हूं, अभी मैं ये कर रहा हूं। नाडा जब इसीलिए इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, athlete can be selected for dope control anytime, anywhere by National Anti-Doping Agency. Very, very important to understand.
सबसे पहली चीज होती है, जैसे ही इंटीमेट किया जाता है एक एथलीट को, क्या किया जाता है, डोप कंट्रोल ऑफिसर, जब आपको मालूम, अब जब लिखा जाता है कि आपका सपोज सैंपल होना है, आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको जैसे ही उसमें हमको इंफॉर्मेशन आती है कि सो एंड सो मेडल, सपोज टेक वी कंसिडर आज आपका कंपटीशन है, जो फर्स्ट आ रहा है, हमारे को इंटीमेशन आया, जो फर्स्ट आएगा उसका सैंपल कलेक्शन करना है। सबसे पहले एक डीसीओ आपके पास आएगा, वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं सो एंड सो हूं, अपना आईडी दिखाएगा आपको, आपके पास अपना आईडी होगा, वो आपसे अपना आपका आईडी पूछेगा, वो बताएगा मैं नाडा से आया हूं, मैं एक डोप कंट्रोल ऑफिसर हूं, आप भी वहां से आईडी दिखाएंगे और अपना आपका आईडी पूछेगा, आप उनको आईडी दिखाएंगे और फिर वो आपका आईडी के हिसाब से आपका एक डोप, जो हमारा डोप कंट्रोल फॉर्म है उसके ऊपर वो आपके बारे में लिख देगा, आपका डिटेल्स लिख देगा, आपका आईडी नंबर लिख देगा और आपसे बोला जाएगा कि वो आप उस पर वो एक नोटिफिकेशन हुआ कि आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आप डोप कंट्रोल स्टेशन चलिए, आपका डोपिंग होना है, डोप टेस्ट होना है। आपने उसके ऊपर साइन करना है, नोटिफाई, आप जैसे ही साइन कर देंगे आप उस टाइम नोटिफाई हो गए हैं। उस पर टाइम लिखा होगा, आप उसमें देख सकते हैं, उस फॉर्म पे प्रॉपर टाइम लिखा होगा, जो आपने आईडी दिया होगा उसका नाम, आपका नाम और आईडी का नंबर लिखा होगा कि आपको इतने बजे इंटीमेट कर दिया गया है। जैसे आपको इंटीमेट किया है, अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, अगर आपके पास कोई मेडल सेरेमनी इस टाइम नहीं है, आपका कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप डीसीओ आपको कंपनी करेगा या शेफरॉन आपको कंपनी करेगा और आपको डोप कंट्रोल स्टेशन में लेके आ जाएगा आपके फर्दर टेस्ट करने के लिए। सो नोटिफिकेशन पार्ट में वो पार्ट आता है। सबसे इसमें लिखा गया है एथलीट वन सेलेक्टेड फॉर डोपिंग डोप कंट्रोल टेस्ट इज नोटिफाइड बाय डोप कंट्रोल ऑफिसर। जैसे मैंने आपको बताया, आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जब कि आप सेलेक्ट किए गए हैं, आपका आज डोप टेस्ट होना है। DCO will ask athlete to sign the receipt of notification form and agreement to undergo for the test। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका अभी डोप कंटेस्ट, आपका डोप कंट्रोल, आपका डोप टेस्ट करना है, आपने उस इंटीमेशन के ऊपर साइन करना है। जैसे ही अगर आपने इसमें से, जब वो आपके पास आता है या आप भाग गए, जब आपको बताया गया था ADRVs, आपने DCO को देखा और आपने देख के भाग गए, आप ADRV के अंडर में काउंट हो जाएंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपके पास DCO अप्रोच कर रहा है, आप उनसे बताइए क्या, वो आपको बताएंगे कि आपको नोटिफाई करेंगे कि आपको आज सिलेक्शन, आपको सेलेक्ट किया गया है, आपका डोप टेस्ट करना है, आपने जाना है और आपने, अगर आपने टाइम देखना है, अपना आईडी दिखाना है, आपने उसको एथलीट के एग्रीमेंट के हिसाब से टेस्टिंग के लिए एग्री होके आपको बताएगा कि ये चीजें हैं, अगर आपको कुछ 60 मिनट्स का टाइम में ये चीजें आप कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चलिए, जो डोप कंट्रोल स्टेशन में आपका टेस्ट करना है, आपका सैंपल कलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा आता है एथलीट में बी एडवाइज ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात भी आज इस अगले स्लाइड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट्स जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे आपके कुछ राइट्स भी हैं, वो भी इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड थिंग हो जाता है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन हो गया, आप नोटिफाई हो गए, आप डोप कंट्रोल स्टेशन में आ जाते हैं। ठीक है, आर वी ऑन द सेम पेज? क्या हम लोग एक ही पेज पर हैं? यस, नो, मे बी? प्रोसीड करें ना आगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ही आपको नोटिफाई किया, आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आप डोप कंट्रोल स्टेशन में आ जाएंगे। वहां पे इसमें लिखा है एथलीट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू DCS एज सून एज पॉसिबल आफ्टर नोटिफिकेशन, मैक्सिमम ऑफ 15 मिनट्स and for out of competition and 60 minutes in competition testing। 15 मिनट्स और 60 मिनट्स का टाइम दिया गया है। फेलियर टू रिपोर्ट में रिजल्ट इन एन ADRV, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। अगर आपने 60 मिनट से ऊपर का टाइम लिया और या आप 15 मिनट से 60 मिनट्स में, अगर आप डोप कंट्रोल स्टेशन में विदाउट एनी कोई इंपॉर्टेंट काम के अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, दैट वुड बी कंसिडर एज ADRV। ADRV क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज ADRV? कोई एक आदमी बताइए, व्हाट इज ADRV? ADRV क्या है? ADRV अभी हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं ADRVs। ADRV का फुल फॉर्म क्या है?
हाँ हाँ बोलो बोलो, ADRV क्या है? एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। वेरी गुड वेरी गुड, एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। अगर आप इसमें से कुछ भी करते हुए पकड़े गए तो एंटी डोपिंग रूल वायलेशन होगा। रिपोर्टिंग टू डोप कंट्रोल स्टेशन में पहले अगर आप भाग जाते हैं या 60 मिनट से डिले करते हैं, दैट वुड बी कंसिडर एज एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। नाउ उसके बाद आपको बताया जाएगा, वहां पे पानी रखा होगा, आपको बताया जाएगा कि आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको आपका यूरिन सैंपल लेना है, वहां पानी होगा, आपको बताया जाएगा आप पानी पी सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि गेटिंग रेडी फॉर डोप सैंपल, ड्रिंक वाटर। क्या होता है जब आप सैंपल देते हैं, स्पेशली यूरिन सैंपल, उसमें क्या किया जाता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट की जाती है। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे, अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका सैंपल लेने के बाद जब आपका सैंपल सील हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका एक कोड है, दैट इज 1.010, अगर उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है तो आपका सैंपल रीसैंपलिंग होगी, आपको फिर से सैंपल देना पड़ेगा। और हो सकता है आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा DCS में बैठना पड़े अंडर ऑब्जर्वेशन, फिर से सैंपल देने के लिए, क्योंकि वो सैंपल आपका काउंट नहीं होगा जो आपका फर्स्ट सैंपल दिया गया है, बट उसको हम फेंकेंगे नहीं, वो फिर भी हमारे पास रहेगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीजिए। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर आपके पास आपको ज्यादा पानी पियोगे तब भी दिक्कत है, कम पियोगे तब भी दिक्कत है, तो उतना ही पियो। इतना भी बॉडी को डाइल्यूट मत कर दो कि आपका वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.010 से नीचे हो जाए। अगर उससे नीचे हो गई तब भी वो आप ही की वजह से होगा, बिकॉज आपने ज्यादा पानी पी लिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई है। फिर से सैंपलिंग के लिए आपको बैठना होगा काफी टाइम तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना है। अगर आपको सैंपल आप देख रहे हैं कि आप 130-150 ml तक सैंपल दे सकते हैं, आप रेडी हैं, आप जाके सैंपल दे दीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत, आपको लगता है कि नहीं मेरा इतना प्रेशर नहीं बन रहा है, या मैं यूरिनेट नहीं कर पाऊंगा 130 ml या 150 ml या 190 ml नहीं दे पा रहा हूं, तो आप थोड़ा पानी, वहां पे बॉटल पानी की रखी होगी, ज्यादा से नहीं तो थोड़ा पानी पीजिए, थोड़े टाइम में थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, देन आप यूरिन पास करके सैंपल फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम, उसके बाद आप क्या करते हैं, ये है पानी के बारे में। नेक्स्ट है, जैसे आप DCS में आते हैं, आप टाइम से पहुंच गए, आपको जैसे DCO आपको बताया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सिलेक्शन ऑफ कलेक्शन वेसल, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वहां कलेक्शन वेसल होगी जिसमें आपने यूरिन पास करना है। आपको दिखाया जाएगा कि ये आप देख लीजिए कौन सा आपको सैंपल, कौन सा वेसल आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। आप उसमें चेक करेंगे कोई सैंपल कलेक्शन में कोई बैग में, कुछ पाउच में कुछ कटिंग तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ नहीं है, आपने वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, आपको बताया जाएगा, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा, अब इसमें लिखा है when athlete is ready to urinate or feels sufficient pressure may select a sealed and sterile container wrapped individually in a plastic bag। जो आपका कलेक्शन वेसल होगा वो एक प्लास्टिक बैग में एक सील्ड पैकेट में होगा, आपने उसको खुद ही सेलेक्ट करना है, जो आपको ठीक लगे उसमें से वो आपने कलेक्शन वेसल ले लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट होगा, जब आपने एक बार सैंपल दे दिया, आपने जब सैंपल देने जाएंगे उसके पहले आपके साथ एक DCO आपको अकम्पनी करेगा, जो आपको विटनेस करेगा डायरेक्ट पासिंग यूरिन पास करते टाइम। आप उसके साथ अगर बहस करेंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं सैंपल आपके सामने नहीं दूंगा, मैं विटनेस नहीं करना चाहता, तो ये भी एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के अंडर में आएगा। आपको जो सैंपल देना है, आपको ये याद रखना है, आपको सैंपल आपका विटनेस किया जाएगा। DCO ऑफ द सेम जेंडर, DCO ऑफ द सेम जेंडर बोले तो जैसे कि अगर कोई फीमेल है तो एक फीमेल DCO आपको अकम्पनी करेगी, कोई मेल है तो मेल DCO आपको अकम्पनी करेगा और आपको विटनेस करेगा यूरिन पास करते समय। जब आप यूरिन पास कर रहे होंगे वो विटनेस करेगा कि आपने उनके सामने वो कंटेनर में यूरिन पास किया। फिर आप उसको बंद करेंगे जो आपका कलेक्शन वेसल है और आप उसको लेके बाहर आ जाएंगे। और जब आप ये सैंपल जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा चीज है कि आप इसमें लिखा है, और ये आपको अंडरस्टैंड करना है, एथलीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी क्लोथिंग और ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिड चेस्ट टू नीज एंड फ्रॉम द हैंड्स टू द एल्बोज।
आपकी जो स्लीव्स हैं, आपको हाफ स्लीव्स टी शर्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर फुल स्लीव्स हैं तो आपको स्लीव्स रोल कर लेनी है एल्बो तक, और अगर आपकी जो शॉर्ट्स हैं वो आपके जो टी शर्ट है वो मिड चेस्ट तक, और जो शॉर्ट्स है वो नीज तक रहेगी, और जो स्लीव्स हैं वो एल्बो तक, और फिर आप यूरिन पास करेंगे, वो आपको विटनेस करेगा जो भी डीसीओ होगा। अब कितना सैंपल आपने, अगला आता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन सैंपल। अब इसमें पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन सैंपल में आता है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 90 ml ऑफ यूरिन इन केस ऑफ ईपीओ, टेस्टिंग वॉल्यूम इज 120। रिमेंबर दैट एथलीट आर ओनली वन हु कैन हैंडल द सैंपल्स। ओके, जो मिनिमम सैंपल जो यूरिन का होगा दैट इज 90 ml, 90 से 100 ml होगा। अगर उसमें एक एरिथ्रोप्रोटीन होगा, ईपीओ भी होगा टेस्टिंग में, तो आपको 120 टू 130 ml तक यूरिन आपको लेके जाना है। जो भी यूरिन आप लेके जाएंगे उसका सैंपल, सारा सैंपल आपके पास ही रहेगा। आप जो भी आप यूरिन कलेक्ट करेंगे, जो भी आप हैंडलिंग करेंगे यूरिन की, वो आप खुद उसको हैंडल करेंगे। डीसीओ आपका सैंपल को टच नहीं करेगा। वो आप उसकी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे और आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। वो आपको बताएंगे कंटेनर से निकालिए और किस तरीके से बॉटल बी में डालिए, बॉटल सैंपल कलेक्शन बॉटल वेसल ए में डालिए। जैसे जैसे वो बताते जाएंगे, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। कोई भी आपके सैंपल को हाथ नहीं लगाएगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ डोप कंट्रोल किट। जब भी आपने सैंपल ले लिया, आप सैंपल लेके आ गए, विटनेस हो गया, सब कुछ हो गया, आपका यूरिन प्रॉपर 90 ml टू 130 ml, 100 ml टू 130 ml जितना चाहिए आप लेके आ गए। जैसे ही आप वहां आएंगे, फिर आपको बताया जाएगा एक डोप कंट्रोल किट है, आपको बताया जाएगा वो डोप कंट्रोल किट है, उसका सिलेक्शन कीजिए। वो बॉक्सेस होंगे, थर्माकोल के बॉक्सेस होंगे, उसमें वो पैक्ड रहेंगे। आपको बताया जाएगा कोई भी आप एक बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, कुछ भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना है, बिकॉज उसमें सीलिंग इस तरीके से होती है। आपको बोला कि जब बोलेंगे उसमें 2 टेप होंगी, ब्लू सिल्वर अलग अलग तरह की, पहले कौन सी टेप खोलनी है वो आपको डीसीओ बताएगा, उसी हिसाब से आपने उसको ओपन करना है। वंस द कंटेनर इज ओपन, आपने कंटेनर ओपन कर दिया, आपको बताया उसमें किट्स के ऊपर आप जो भी आप इसमें लिखा है, एथलीट इज आस्क्ड टू सेलेक्ट अ डोप किट कंसिस्टिंग ऑफ लेबल्ड कंटेनर्स which will hold, identify and secure urine samples. Again, athletes are responsible for handling their samples until it is sealed. जब तक सैंपल सील नहीं हो जाता है तब तक ये सारा जो काम है वो आपका, जो भी कलेक्शन करके कलेक्शन वेसल से लेकर डोप का सैंपल को किट्स में सील करना, ये सारा का सारा काम जो है ये एक एथलीट का ही होता है। अब उसमें जब आपका वो सैंपल, हेलो, जब आपने ये सैंपल ले लिया, आपने सिलेक्शन कर लिया, डोप कंट्रोल का किट का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद होगा उस सैंपल को स्प्लिट करना। अब क्या है, उसमें 2 बॉटल्स होंगी, उस बॉटल के ऊपर नंबर होगा, उसमें बॉटल, एक सैंपल कलेक्शन बॉटल ए होगी, एक सैंपल कलेक्शन बॉटल बी होगी। आपको बताया जाएगा पहले आपने जो यूरिन है वो बी में डालना है, फिर आपने ए में डालना है। तो बी में आपने 30 ml डालना है और बचा हुआ फिर आपने यूरिन 60 ml ए में डालना है। और अगर वो 130 ml है तो वो आपको बताया जाएगा कि आपको 40 उसमें डालना है या 50 बी में डालना है और बाकी आप ए में डाल दीजिए। आप उस तरीके से आपने उसको सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने हाथों से। जो बॉटल है, जो सैंपल कलेक्शन बॉटल है, वो बर्लिंगर की आती है। उसके ऊपर, सैंपल कलेक्शन बॉटल के ऊपर एक रेड कलर का रिंग होता है। आपको वो रिंग जब तक आप निकालेंगे नहीं, आप बॉटल को सील नहीं कर पाएंगे। आपने इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुननी है। जब तक आपको रिंग निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, वो रेड रिंग उसमें से, तब तक आपने रेड रिंग को नहीं टच करना है। आपने सिर्फ ऊपर से ढक्कन हटाना है, सैंपल कलेक्शन में बॉटल में डालना है। जब आपको बताया जाए कि आप अब वो रेड रिंग को निकाल लीजिए और उसके बाद आप ढक्कन रखकर उस सैंपल कलेक्शन बॉटल को टाइट कीजिए, उसी टाइम आपने रेड रिंग निकालना है। उसके पहले आपने वो रेड रिंग नहीं निकालना है। और अगर वो रेड रिंग लगे आपने ढक्कन कहीं जल्दीबाजी में सील कर दिया तो वो सैंपल के साथ छेड़खानी हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। वो सैंपल तो जाएगा ही और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप एडीआरवी के अंडर में भी आ सकते हैं अगर वो रिंग निकाले बिना सैंपल कलेक्शन बॉटल सील करने की कोशिश की गई तो।
बिकॉज वो सैंपल बॉटल सील नहीं होगी और इनकम्प्लीट सील हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स सीलिंग ऑफ सैंपल्स। एथलीट इज आस्क्ड टू लीव a small amount of urine in the collection vessel। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसमें से थोड़ा सा यूरिन आपके सैंपल कलेक्शन वेसल के अंदर ही छोड़ देना होगा, जिससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, जिससे एक डीसीओ स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करता है। सो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो जब बताए कि आपको बस छोड़ दीजिए इतना यूरिन आप सैंपल कलेक्शन में, आप उस यूरिन को छोड़ दीजिए उसमें। वो उसके बाद आपके जब ये उसमें पीएच चेक किया जाएगा, उसमें आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया जाएगा। जब वो बराबर रहेगी उसके बाद आपका वो बॉटल्स आपकी सील होने के बाद ही स्पेसिफिक ग्रेविटी ली जाएगी। जब वो बराबर होगी तभी आपके सैंपल भेजा जाएगा। अगर वो कम हो जाती है तो आपको फिर बैठना पड़ेगा डोप कंट्रोल स्टेशन में अगला सैंपल देने के लिए। देन कम्स अगला काम होता है डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास जो डोप कंट्रोल फॉर्म होता है उसकी 5 कॉपीज होती हैं, उसमें से 2 कॉपी एथलीट्स को दी जाती हैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइडेड होगी, जिसमें आपका डोप कंट्रोल फॉर्म में सारा आपका उसमें पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी तरीके का दवाई ले रहे हैं या आप कोई दवाई ले चुके हैं या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं या कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो आप उसका एक नोट अपने पास रखिए या दवाई अपने पास रखिए, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप उनको इन्फॉर्म कर सके कि ये दवाई मैं ले रहा हूं, ताकि वो फॉर्म में लिखा जा सके कि आप ये दवाई ले रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा भी गया है, एथलीट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डोपिंग कंट्रोल फॉर्म about any prescription or non-prescription medication or any supplements consumed recently। कुछ भी आपने 7 दिन के अंदर, या वो बताया पूछा जाएगा 7 दिन के अंदर आपने कोई दवाई तो नहीं ली है, 7 दिन के अंदर आपने कोई सप्लीमेंट तो नहीं लिया है। अगर आपने लिया है आप इन्फॉर्म कीजिए। आपको नहीं मालूम है तो आप बताइए मैंने कुछ लिया है लेकिन उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, या उसका कहीं नाम लिख के रखिए और फिर आप इन्फॉर्म कीजिए कि ये मैंने लिया है। आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं और डोप कंट्रोल फॉर्म में लिखवा सकते हैं। इस तरीके का दिखता है डोप कंट्रोल फॉर्म। इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर, उसके बाद ऐसे ही सेकंड ऑप्शन आ जाता है कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसे करके इसकी 5 कॉपीज होती हैं, नीचे साइन होता है। इसमें आपके कमेंट्स भी पूछे जाते हैं कि कैसा प्रोसीजर रहा, कैसा फील किया आपने, एक्सीलेंट थे, गुड था, कैसा था, सब कुछ आप लिख सकते हैं और उसके हिसाब से आपने इस फॉर्म को साइन करना है। सब आपका टाइम देखना है, साइन करना है, सब डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। जो भी आपकी कलेक्शन बॉटल का सैंपल नंबर है वो सब इसमें डाला जाएगा। आपने वो सब क्रॉस चेक कर लेना है। बॉटल्स चेक करनी है, लीकेज तो नहीं है। अगर लीक हो रहा है तो आप खुद बता सकते हैं कि लीकेज है इसमें, वो आपको चेक करने के लिए बताया जाएगा। वो सब देखने के बाद आपको इसकी 2 कॉपी दी जाएगी और आप इसको साइन करेंगे इस फॉर्म को और अपना कॉपी लेकर आप डोप कंट्रोल स्टेशन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साइन किया है फॉर्म, आपको उसका हमने लेबोरेटरी में भेजना है, आपका उसका लेबोरेटरी एनालिसिस होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पता लेना कि चेक इन्फॉर्मेशन एंड साइन। आपको बहुत माइन्यूटली सब देखना है कि क्या उसमें जो मेरी बॉटल का सैंपल सील हुआ है, क्या उसमें जो नंबर है और जो फॉर्म में नंबर है सेम है। आपने उनको सबको मैच करना है और सब चीजें आपने मैच करके अगर वो सब ठीक लगा तो आपने उसके ऊपर साइन करना है। इसमें लिखा है एथलीट ऑल्सो हैव द राइट टू पुट कमेंट्स ऑन द फॉर्म रिगार्डिंग द कंडक्ट। जो मैंने आपको बताया, कोई भी कंडक्ट डीसीओ कंडक्ट है जो आपको ठीक नहीं लगा या कुछ भी आपको ऐसा लगा तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास वो राइट है कि आप उसमें लिख सकते हैं। डोप कंट्रोल सेशन, बी श्योर टू कंफर्म दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट इंक्लूडिंग द डोप किट नंबर। डोप किट नंबर और बाकी इंफॉर्मेशन जो आपका नाम भरा गया है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ भरा गया है, आपने वो देखना है क्या वो करेक्ट है क्या नहीं है। अगर उसमें कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप बताना है इमीडिएटली कि ये गलत है क्योंकि इसमें नंबर ये है और मुझे कुछ और नंबर दिख रहा है, या मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। आपने वो इन्फॉर्म करना है डीसी को देन देयर बिफोर आप उसको साइन किया जाए और आपको वो कॉपी दे दी जाए डोप कंट्रोल स्टेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेंडिंग सैंपल टू लेबोरेटरी। उसके बाद हम लोग नेशनल जो भी डीसीओ होगा वो एक प्रॉपरली उसको सील कर जब वो आपने उसको सील कर देना है बॉक्स को। जब वो सील हो जाएगा उसके बाद वो दिल्ली भेजा जाएगा एनडीटीएल, दैट इज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जहां पे वो सैंपल का टेस्टिंग किया जाएगा। अब लेबोरेटरी एनालिसिस जो है वो बहुत इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया भी गया है, आपको मैंने शुरू में बताया था ये, द सैंपल आर पैक्ड एंड शिप्ड टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी ऑफ द सैंपल इज ट्रैक्ड।
आपको जो सैंपल है और जो सैंपल जिस तरीके से पैक होता है, सील होता है और शिपिंग होता है टिल द लेबोरेटरी, वो बहुत ही उसमें बहुत सिक्योरिटी चेन कस्टडी मेंटेन की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की जाती है, बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है उसको, और उस तरीके से वो लेबोरेटरी तक पहुंचता है। जो भी वाडा एक्रेडिट लेबोरेटरीज होती हैं, जो कि वाडा से एक्रेडिट होती हैं लेबोरेटरीज, उन्हीं में भेजा जाता है, ऐसे किसी भी लेबोरेटरीज में नहीं भेजा जाता। वो वाडा ने ही उन लेबोरेटरीज को अप्रूव किया जाता है जहां पे ये सैंपल टेस्टिंग होती है। इंडिया में वो दिल्ली में है, दैट इज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। द लेबोरेटरी देन एनालाइज सैंपल ए फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस फॉर मेथड्स। जो आपने दो सैंपल सील किए हैं, सैंपल ए और बी, उसमें जो सैंपल ए है उसका टेस्टिंग जो है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के लिए किया जाएगा। सैंपल बी यूज किया जाएगा इन केस अगर आपका सैंपल ए में कोई दिक्कत लगी, आपके सैंपल ए में कोई दिक्कत है, तब सैंपल बी को आपसे आपकी परमिशन लेकर खोला जाएगा और आपके सामने उसका टेस्ट किया जाएगा। वो दैट कम्स फर्दर। यही है। अगर अभी रिजल्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं, रिजल्ट मैनेजमेंट में दो चीजें होती हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आती हैं, उसमें एक बताया जाता है नेगेटिव फाइंडिंग्स, तो नाडा रिकॉर्ड्स में वो लिख दिया जाता है कि उसकी फाइंडिंग्स नेगेटिव थी जो हमने टेस्ट किया। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव फाइंडिंग्स। अगर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाती है और वो एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में अगर वो आदमी आता है, देन उसके ऊपर एक एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल होता है जो कि उसके ऊपर बात किया जा जो कि एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल में डिस्कस किया जाता है और उसके हिसाब से वो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर लिया जाता है। अब अभी तक जितना हमने ये कंट्रोल जो हमने रिजल्ट मैनेजमेंट तक डिस्कस किया, इसमें आपको कोई डाउट है सैंपल कलेक्शन से लेके नो सर, रिजल्ट मैनेजमेंट तक? नो। ऑलराइट, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो इधर प्ले करते हैं। वीडियो दिख रहा है तो बताना, नहीं तो After an athlete submits a sample for dope testing, what is the procedure followed by National Anti-Doping Agency? Following the analysis of a sample, if the WADA accredited laboratory detects the presence of prohibited substance or methods, NADA conducts an initial review to determine whether a therapeutic use exemption (TUE) is applicable or is there any apparent departure from the international standard for testing. If the initial review validates either TUE or departure in procedures, the result of sample is treated as null and void. However, if no TUE or departure in procedure is found during initial review, the athlete is notified about the anti-doping rule violation along the concerned sports federation and WADA. If a prohibited substance under non-specified category is detected in an athlete's sample, athlete is provisionally suspended pending on a final hearing. The athlete has the right to request for the analysis of his or her B sample within 7 working days of receiving the notice from NADA. If the B sample analysis does not confirm finding of A sample, the entire test is considered negative. But in case it confirms the adverse finding, a notice of charge is issued by NADA to the athlete asserting the anti-doping rule violation. The Independent Anti-Doping Disciplinary Panel conducts a hearing in each case where the athlete is given an opportunity to present his or her case. It may result in a ban, which can be appealed within 21 days before the Anti-Doping Appeal Panel. ऑलराइट, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे सैंक्शंस फॉर एडीआरबी। क्या क्या सैंक्शंस होता है इन केस एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस होता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स इन इवेंट ड्यूरिंग व्हिच एन एंटी डोपिंग रूल वायलेशन अकर्स। पहली बात तो अगर कोई स्पोर्ट्स में जो एडीआरबी रूल्स है, जैसे बताया गया कि अगर वो आदमी कोई एथलीट है वो भाग जाता है या वो सोचता है कि मैं भाग जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा डोपिंग से, डोपिंग टेस्ट नहीं होगा मेरा तो मैं बच जाऊंगा, तो सबसे पहले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है रिजल्ट्स में, उसको उसका रिजल्ट नहीं
काउंटर किया जाता है जब तक वो डोप टेस्टिंग के लिए आता नहीं है। सेकंड आता है imposition of ineligibility for prohibited substances and prohibited methods except for specific substances as mentioned। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो भी अगर उसकी बॉडी में ये कंसीडर किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई इसलिए किया जाता है कोई भी एथलीट अगर भाग जाता है या ADRB के अंडर में आता है तो उसको ये माना जाता है, इसका मतलब उसने he will be considered as उसने डोप किया होगा, इसीलिए शायद वो भाग गया या वो अपना डोप टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो वो ऑटोमेटिकली ADRB के अंडर में आ जाता है। सो सैंक्शंस में क्या क्या होता है, जब कोर्ट में जाते हैं, जब वो नाडा में जब वो एंटी डोपिंग रूल वायलेशन कोर्ट का हियरिंग होती है तो उसमें फर्स्ट वायलेशन में 4 साल की इनएलिजिबिलिटी हो जाती है, जो कि फर्दर फिर उसमें देखा जाता है कितना है और टू फर्दर रिडक्शन टू 2 क्या होता है। बहुत सारी जगहों पे जहां पर 4 साल की इनएलिजिबिलिटी हो गई है और लेकिन बाद में पता लगता है कि उसकी गलती नहीं थी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था उसकी वजह से ऐसा हो गया है, सो उसको रिड्यूस करके 2 साल भी किया जाता है। अगर सेकंड वायलेशन हो जाता है तो 8 इयर्स तक या लाइफ टाइम इनएलिजिबिलिटी में काउंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आज जिसके बारे में जो ये सब चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सपोज हम लोग कोई दवाई ले रहे हैं, अब सपोज हमारे को उस दवाई की बहुत जरूरत है, अब हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है बिकॉज हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, अभी सभी जो एथलीट्स हैं वो भी इंसान हैं, तो सबको बीमारी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है या कोई और बीमारी भी हो सकती है, तो आपको दवाई लेना है। सपोज आपको दवाई लेना है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको सो एंड सो दवाई आपने लेनी पड़ेगी, आप उनको बताएंगे पहले बिकॉज ये आपकी बॉडी है, सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई भी डॉक्टर के पास जाने के टाइम वहां इन्फॉर्म करना है कि सर मैं एक एथलीट हूं और मैं एथलीट हूं और मैं वाडा कोड ऑफ कंडक्ट 2021 के अंडर में आता हूं, नाडा वाडा के अंडर में आता हूं और मेरे को ऐसी कोई भी दवाई नहीं चाहिए जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में हो। सो वो डॉक्टर बताएगा अगर आप ये दवाई नहीं लेते हैं तो ये आपको ये कंपलसरी ये दवाई लेनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो या तो वही एक ही मेडिसिन ऑल्टरनेटिव है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है और आप वही दवाई ले रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपने वो दवाई ली है लेकिन वो एक ऑल्टरनेटिव भी था लेकिन डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करने को तैयार है, तो आप उनको बता सकते हैं अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप वो दे दीजिए, मुझे ये मत दीजिए बिकॉज ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में आती है। इन केस अगर ऐसा होता है कि वो लिस्ट में दवाई जो ऑल्टरनेटिव है वो भी लिस्ट में है और ये वाली भी लिस्ट में है, तो आपको क्या करना होगा, आपने वो दवाई तो लेनी है बिकॉज आपको अपनी हेल्थ भी ठीक करनी है, लेकिन आपको क्या करना है उसके पहले इसके लिए हम लोग यूज करते हैं TUE, उसको बोला जाता है थेरेप्यूटिक यूज एग्जम्पशन। इसमें क्या किया जाता है, आपका कभी भी कोई बीमारी की कंडीशन होती है या कुछ भी होता है, एक फॉर्म आता है TUE का, आपने वो फॉर्म भरना है, आपने इन्फॉर्म करना है। अगर आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, आप उस डॉक्टर के पास बताना है कि मैं एक एथलीट हूं, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई आप ले रहे हो, तो आपने थेरेप्यूटिक यूज एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करना है ना। इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें लिखा है एथलीट्स में हैव इलनेस और कंडीशन दैट रिक्वायर्स देम टू टेक पर्टिकुलर मेडिकेशन, जो कि प्रोहिबिटेड है, वो मेडिकेशन अगर उसको लेनी हो तो उसको अप्लाई करना होगा TUE के लिए। नाउ सेकंड बोलता है इफ द मेडिकेशन फॉल्स अंडर प्रोहिबिटेड लिस्ट a therapeutic use exemption may be given which authorize the athletes to take the needed medicine। सपोज आपका कोई इवेंट आ रहा है, अगर आपका इवेंट आ रहा है और आपने TUE लिया हुआ है, आपको वो TUE अपने पास रखना है, आपने वो इंफॉर्मेशन दिखानी है कि मेरे को TUE सैंक्शन किया गया है। आपका जब डोप टेस्ट होगा तो आपने TUE मेंशन कर देना है, आपका TUE मेंशन किया जाएगा डोप टेस्ट कंट्रोल फॉर्म में। जब आपका टेस्ट होगा तो TUE आपका उसके साथ होगा, तो ये मालूम पड़ जाएगा टेस्टिंग के टाइम पे कि ये जो आपकी जो सैंपल का एनालिसिस किया गया है ये बिकॉज आपने वो मेडिसिन ली है उसकी वजह से आया है, तो आप उस ADRB के अंडर में नहीं आएंगे। TUE लेने का ये फायदा है। बट अगर सपोज अगर इसमें बहुत कुछ उसमें TUE में ये चीजें होती है, उसमें आपको कितना डोज लेना है,
कितना क्वांटिटी में आपको उस मेडिसिन को लेना है, कहीं आपने उसको ज्यादा ले लिया या आपको बोला गया है कि आपको एक गोली खानी है, आप 4 गोली खा के चले गए हैं और आप टीवी दिखा रहे हैं, सैंपल में दिख गया है कि आप एनालिसिस में पता लग गया है कि आपने तो 4 गोली खा ली है और ये एक खानी चाहिए थी, तो आप एडीआरवी के अंडर में आएंगे। बट आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक गोली और आप एक ही खाया है, तो आपने टीयूई लिया हुआ है, तो आप एडीआरवी के अंडर में नहीं आते हैं, आप सैंक्शन, आपके ऊपर सैंक्शन इशू नहीं होगा उस टाइम। थर्ड आता है TUE सर्टिफिकेशन इज डन बाय TUEC बेस्ड ऑन द मेडिकल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। क्या होता है TUE जब आप भरते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा आपका डायग्नोसिस, आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरी की पूरी आपकी टेस्ट के साथ, आपका जो मेडिकल ऑफिसर है, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, जो भी आपका फिजिशियन है, वो उसमें मेंशन करेगा, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स मेंशन करेगा, वो सारी फाइल बनाकर वो फॉर्म के साथ थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन के लिए वो नाडा को भेजेगा। जब वो नाडा के पास आएगी तो वहां पे एक थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन कमेटी होती है, जिसमें डॉक्टर्स का एक पैनल होता है। वो पैनल आपके सारे सर्टिफिकेट्स चेक करेगा, आपके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करने के बाद वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या ये TUE आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो डिसाइड करती है कि इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेडिसिन भी थी, लेकिन आपने वो मेडिसिन ले ली है और आपने वो लिया है लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं ली है, तब भी हो सकता है, बिकॉज इसमें लिखा है कोई भी मेडिकेशन लिस्ट में एग्जाम्पशंस तभी मिलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन दी TUE कमिटी। अगर वो डिसाइड करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर इलनेस के लिए वही दवाई थी और कोई दवाई नहीं है, बट ये आपका एनहेंसमेंट भी करता है ये ड्रग लेने से, तो वो शायद दे ना दे, ये TUEC के अंडर में आता है। लेकिन आपको अप्लाई करना है TUE के लिए अगर आप कोई भी मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं तो। अब किस किस केस में आपके TUE ग्रांट हो जाते हैं? सबसे पहले TUE का एक चीज याद रखना है कि TUE ग्रांट के लिए आपको जो है वो आपको 30 डेज इन एडवांस अप्लाई करना होता है। जब 30 डेज इन एडवांस अप्लाई करते हैं, विद इन 21 डेज में आपको TUE कमिटी का आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपका TUE सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन कौन से चीजों में आपको TUE दिया जा सकता है? यस यस, इन्फॉर्म काम करें सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा, आगे आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए। इन्फॉर्म काम करें इन क्या भरत भरत व्हाट ही सेइंग? कौन कहां पर करे? हाँ, दूसरा कहां पर दे? क्या बोल रहा है? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर वो पूछ रहे कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे देना है। इंफॉर्मेशन कहाँ पे देना है? हाँ, TUE का इंफॉर्मेशन कहाँ पे देना है? कहाँ पे पूछना है कहाँ पे पूछना है? वो एक वेबसाइट के ऊपर, वो नाडा का वेबसाइट के ऊपर ही TUE एग्जाम्पशन फॉर्म्स आता है, थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन। आपने उसमें जाएंगे तो आपने उनको पूछना है थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन चाहिए, तो वो फॉर्म और सब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो सब लगा के आपने अप्रूवल के लिए भेजना है। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। भारत? यस यस सर। ओके ओके, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग। सर 1 minute. You can increase the pace because the athletes have session at 4:30 now. ओके 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 ओके, सो Start the interactive discussion. हाँ, ग्रांटिंग ऑफ TUEs कौन कौन सा कंडीशन में होता है?
if the in the following if each of the following condition is met, इसमें आपको TUE मिल जाता है, treatment is denied, a significant impairment to health will occur, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, यही दवाई आपको लेनी होगी. Second, it should not produce any additional enhancement of performance than the return to normal state of health after treatment. That means आपको कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट नहीं होने वाला है, लेकिन आप वापस से ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका एनहांसमेंट रहेगा बॉडी में, आप नॉर्मल स्टेट नॉर्मल हेल्थ पे रिटर्न हो जाएंगे. उन केसेस में मिल जाता है. देयर इज नो रीजनेबल थेरेपेटिक अल्टरनेटिव, इसके सिवाय और कोई दवाई नहीं है. फोर्थ, the use is not consequences of prior use with the TUE of a prohibited substance or method. अभी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि आपने पुराना कुछ आपने TUE यूज कर रहे हैं और आपको प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आप अभी यूज कर रहे हैं और TUE आपका एक्सपायर हो चुका है. इस केसेस आपका आवाज नहीं आ रहा है. हाँ बोलो भरत. Yes, yes, sir. हाँ क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट. हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे हम एथलीट हैं सर, जो अब बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं पता कि क्या चीज डोप में है, कितना कैफीन लेना, कितना हर चीज के बारे में आपने बोला कि आप वो गूगल से ले ले, मान ली फॉर एग्जाम्पल हमसे ले लेते हैं, बट सर स्पोर्ट्स में इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं, तो उससे बेहतर ये रहेगा नहीं सर उसको न्यूट्रिशन को दिया जाए और फिर हम न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे. हाँ ऐसा होता है, इसीलिए बोला जाता है कि थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन, कोई भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, कुछ भी आप लेते हैं, अगर आप गूगल से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना. पहली बात तो कुछ भी, ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसके अगले स्लाइड में वो आने वाला है. सब कुछ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सब आगे आ रहा है. जी सर, वो जरूर करना चाहिए. हाँ अब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एथलीट की. इसमें कुछ चीजें ऐसी है, टू बी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है टू बी नॉलेजेबल ऑफ and comply with all applicable anti-doping policies and rules adopt pursuant to the code. That means ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और आपको कंप्लाई करना है सभी रूल्स के, जो भी रूल्स वाडा ने दिए हैं, जो भी एंटी डोपिंग रूल्स हैं, उसको आपने उसको बेसिकली उन पॉलिसीज को और उन रूल्स को आपने अडॉप्ट करना है. टू बी अवेलेबल फॉर सैंपल कलेक्शन एट ऑल टाइम्स. दैट मीन्स आपका जब भी सैंपल के लिए बुलाया जाए, आपको इमीडिएट, आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं दूंगा. जैसे अभी कोई बता रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो ADRV के अंडर में आएगा. टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी डोपिंग फॉर व्हाट दे इंजेस्ट एंड यूज. जैसे मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आपकी वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आप इंजेक्ट कर रहे हैं, वो क्या आप यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. टू इन्फॉर्म मेडिकल पर्सनल ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस नॉट टू यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड प्रोहिबिटेड मेथड्स एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव्ड डज नॉट वायलेट एंटी डोपिंग पॉलिसीज एंड रूल्स अडॉप्टेड पर्सुएंट टू द कोड. ये भी आपको बता दिया गया है पहले ही कि आपकी बॉडी में कुछ भी गया है, कुछ भी आप इंजेक्ट करते हो, खाते हो, पीते हो, या कोई भी आप प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लेते हो, आपने प्रोहिबिटेड मेथड यूज किया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आपको ये देखना है वो कोई भी एंटी डोपिंग पॉलिसी या रूल वायलेट नहीं करना होना चाहिए, नहीं तो वो ADRV के अंडर में काउंट होगा. दैट इज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. सो आपको बहुत, तभी आपको बताया गया था टू इन्फॉर्म मेडिकल पर्सनल ऑफ देयर ऑब्लिगेशन. आपको मेडिकल के पास, डॉक्टर के पास जाते हो तो इन्फॉर्म करना है मैं एक एथलीट हूँ और मैं वाडा कोड ऑफ 2021 के अंडर में आता हूं और मेरे पास ये प्रोहिबिटेड लिस्ट है. अब मुझे वो मेडिसिन मत देना जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, नहीं तो मैं एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के अंडर में आ जाऊंगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं. टू डिस्क्लोज टू देयर नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फेडरेशन any decision by a non-signatory finding that the athlete committed an anti-doping rule violation within the previous 10 years. अगर कोई भी 10 साल में कभी भी कोई प्रॉब्लम है, अगर
आप कभी भी एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में आपको एडीआरबी मिला हुआ है, आप सैंक्शन मिला हुआ है पिछले 10 साल में, तो आपको ये इन्फॉर्म करना है, आपको इस तरीके से आपने ये इन्फॉर्म करना है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है टू कोऑपरेट विद एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस। आपको कोई भी डोप कलेक्शन सैंपल के लिए आपको बुलाया जाए या कुछ भी ऐसे काम के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका वो है कि आपने उसके कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप फॉर्म में लिख सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथलीट्स, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? दैट यस भरत। Yes, sir. You are asking. हाँ You are asking something, sir. हाँ बोलो बोलो। No, I'm telling there is session for athletes, sir. At 4:30, they will have to leave sometime. 4:30. Okay, we will finish. We'll finish faster than that. Basically, 4:30 they have to leave, you said. Hello. 5 घंटे तो होंगे। तो जो अटेंड कर रहे हो। Shall I continue? Yes, yes, sir. Please. Okay. Responsibility of athletes. Now apply for TUE each time whenever the prohibited substance is prescribed. अगर गलती से कोई भी prohibited substances prescribe किया गया है, so आपका वो responsibility बनती है कि आप TUE के लिए अप्लाई करें each and every time. Do not take prohibited substances without TUC. बिना TUE कमिटी के परमिशन के कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अपनी बॉडी में इनटेक ना की करें। एथलीट्स आर रिस्पांसिबल फॉर वायलेटिंग ऑफ एंटी डोपिंग रूल। आप खुद रिस्पांसिबल है अगर आप एंटी डोपिंग रूल वायलेशन करते हैं तो। टीयूई प्रोसेस, अभी जो पूछ रहे थे टीयूई सर कैसे अप्लाई करना है, सो टीयूई प्रोसेस क्या है? एक टीयूई फॉर्म नाडा की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अप्लाई, डाउनलोड द टीयूई फॉर्म फ्रॉम नाडा वेबसाइट। Certified, duly filled form by treating physician, submit to NADA. डॉक्टर से लिखवाइए सारा कुछ और नाडा को सबमिट कीजिए। टीयूसी डिसाइड करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर वो नेशनल लेवल एथलीट है तो उसको नाडा या नेशनल फेडरेशन को अप्लाई करना है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल एथलीट है सो वो आईएफ को करेगा, दैट मींस इंटरनेशनल फेडरेशन को। बट एनीवेज अगर वो इंटरनेशनल फेडरेशन को करता है तो वापस वो नाडा के पास ही आता है। बट ये दोनों चीजों में ऐसे देखा जाता है, नेशनल लेवल एथलीट के लिए नाडा है और इंटरनेशनल के लिए आईएफ है। और टीयूई जो है वो 30 डेज इन एडवांस करना है ताकि 21 डे तक 21 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाए। अब आता है रेट्रोएक्टिव टीयूई। दैट वाज टीयूई व्हेन यू हैव टू अप्लाई 30 days in advance. This is retroactive TUE. What is retroactive TUE? That means anything where the medical condition, that means immediate or emergency medical treatment is required. उसमें अगर आपको डॉक्टर ने दे दिया, आप बेहोश है, आपको डॉक्टर ने कोई दवाई दे दिया, आप उस टाइम रेट्रोएक्टिव TUE के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे ही आप होश में आते हैं उसके बाद। तो ये है what is retroactive TUE? That is emergency treatment or treatment of an acute medical condition where it is necessary. That means suppose कोई ड्रग है प्रोहिबिटेड लिस्ट में है, that contains some kind of वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में आती है और आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, आप फर्स्ट आ गए और आप बेहोश हो गए, आपको मेडिकल कंडीशन हो गया, आपको इमीडिएटली आपको इवैक्यूएट करना पड़ा हॉस्पिटल में। आप तो बेहोश है लेकिन डॉक्टर ने आपकी कंडीशन देखने के बाद आपको वो इंजेक्शन लगाना जरूरी समझा और उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन वो इंजेक्शन एक ट्रीटमेंट के हिसाब से लगाया गया बिकॉज वो इमरजेंसी में रिक्वायर्ड था। आपको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पे आपका सैंपल कलेक्शन होना था बट आपके साथ ऐसा कंडीशन हो गया। आपको हॉस्पिटल जाने के बाद आपने क्या करना है, जब आप होश में आते हैं आपने टीयूई फॉर्म डाउनलोड करना है और आपने रेट्रोएक्टिव टीयूई के लिए अप्लाई करना है। डॉक्टर को बोलना है मुझे क्या क्या दिया गया है, क्या वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। डॉक्टर बताएगा हाँ वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है। उनकी पूरी ट्रीटमेंट ले लेनी है, वो पूरा टेस्ट शीट बनाएगा, ट्रीटमेंट लेके आपका टेस्ट सब करके वो रेट्रोएक्टिव टीयूई के लिए अप्लाई कर देगा।
जैसे ही आप रेट्रोएक्टिव टीयूई के लिए अप्लाई करेंगे, आपको वो टीयूई कमिटी डिसाइड करेगी कि आपको रेट्रोएक्टिव टीयूई में देना है, आपको देना है कि नहीं देना है, वो लोग डिसाइड कर लेंगे उस हिसाब से। सेकंड ऑप्शन होता है ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस देयर वाज इनसफिशिएंट टाइम और अपॉर्चुनिटी फॉर एन एप्लीकेंट टू सबमिट और a TUC to consider an application prior to doping control. Supposedly कभी-कभी होता है कि कभी आप कोई दवाई ले रहे हो और आपका कंपटीशन पास में आ गया है, लेकिन क्या है वो इमरजेंसी में या कैसे भी आपको इमरजेंसी में मेडिसिन लेनी पड़ गई और आपका कंपटीशन है 5 दिन के बाद और आपके पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको इमीडिएटली वो दवाई लेनी है, तो आप 30 डेज इन एडवांस तो नहीं जा सकते। फिर आपको क्या अप्लाई करना होगा? रेट्रोएक्टिव टीयूई। 30 डेज इन एडवांस इज फॉर नॉर्मल टीयूई, दैट मींस अगर कोई प्लान ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप 30 डेज इन एडवांस आप अप्लाई करेंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी में कुछ भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं दैट कम्स अंडर रेट्रोएक्टिव टीयूई, उसमें आप रेट्रोएक्टिव थेरेप्यूटिक यूज एग्जाम्पशन के लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सब कुछ में अभी एक और चीज है कि रेट्रोएक्टिव टीयूई के साथ एक और चीज है सप्लीमेंट्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्स का सर हम लोग कैसे करेंगे, कि सप्लीमेंट्स तो अलग अलग तरह के होते हैं। सप्लीमेंट्स में बहुत कुछ होता है, सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिखी नहीं जाती है, जो लिखी होती है वो भी होती है, जो नहीं लिखी जाती वो भी होती है। और जब हम सप्लीमेंट लेते हैं तो मालूम पड़ता है क्योंकि गूगल में चेक किया, ये सप्लीमेंट किसी ने बता दिया ये खा लो, हमने खा लिया और फिर हम फंस जाते हैं और फिर हम बोलते हैं उसने बताया था। उसके बताने से कुछ नहीं होता है। अभी तक आपने देखा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते भी हैं, कोई अप्रूव्ड सप्लीमेंट लेते भी हैं, आप उसका उसका नाम, उसकी एक क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी रख लीजिए, ताकि टेस्टिंग के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। तो उसके ऊपर वो जो है वो कार्रवाई बाद में हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली जब टेस्टिंग में पकड़े जाएंगे तो ADRB रूल आपके ऊपर लागू हो जाएगा। सो इसलिए बोला जाता है सिर्फ दवाई ही नहीं, इवन सप्लीमेंट्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे लिखा रहता है अप्रूव बाय नाडा, अप्रूव बाय वाडा। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो वाडा या नाडा अप्रूव करती है। सो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये देखना है, वाडा और नाडा कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ऑथराइज नहीं करती है या अप्रूव नहीं करती है कि आप उसको लेंगे। नाउ सप्लीमेंट्स किस तरह के होते हैं? सर्टेन कंटेन्स ए बैंड सब्सटेंस, जैसे बताया, बी कंटामिनेटेड विद ए बैंड, किसी बैंड सब्सटेंस से कंटामिनेट हो चुके हैं, या वो कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स दैट आर नेम्ड डिफरेंटली टू हाउ दे अपीयर ऑन द लिस्ट। किसी का नाम कुछ और लिख दिया जाता है, लिस्ट में कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है, बट वो पकड़े जाते हैं जब उसमें लिखा ही नहीं गया। आपने बोला आपने ले लिया, लेकिन उसका नाम कुछ और लिख दिया है उन्होंने। मेक फॉल्स क्लेम्स which is approved by WADA or safe for athletes, उसमें लिखा जाता है this is approved by WADA and safe for athletes, आप उसको ले लेते हैं। WADA कुछ भी, WADA और NADA कुछ भी अप्रूव नहीं करता है, ये सब गलत क्लेम्स हैं। exclude some ingredients from the label, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि है उसके अंदर बट वो लेबल पे नहीं लिखी गई हैं। to be sold as fake products on internet, जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड बोल रहे थे सर हमको ना ज्यादा नॉलेज नहीं है, गूगल पे गए चेक किया और खा लिया। ऐसे नहीं करना है। बेस्ट थिंग है आप जो आपके ऑथराइज मेडिकल डॉक्टर हैं उनसे आप पूछिए क्या अप्रूव है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ही आप सप्लीमेंट लीजिए, अपनी मर्जी से सप्लीमेंट मत लीजिए। इसमें लिखा गया है एथलीट नीड टू इंश्योर दैट दे आर फुली अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लीमेंट यूज एंड हाउ टू मिनिमाइज दीज रिस्क। आपकी बॉडी है, आप एथलीट हैं, आप गेम खेलने वाले हैं, तो आपको ये फुली पता होना चाहिए, आप अवेयर होना चाहिए इसके लिए क्या रिस्क एसोसिएटेड है इस सप्लीमेंट के साथ, अगर मैं लूंगा तो क्या हो सकता है। सेकंड इज सप्लीमेंट्स दैट आर नॉट बैच टेस्टेड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनएडवर्टेड डोपिंग। बहुत सारे बैच टेस्टेड सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें टेस्ट पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एथलीट मस्ट अंडरटेक थरो रिसर्च बिफोर यूजिंग ए सप्लीमेंट। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसके बारे में थरोली आप चेक कीजिए कि वो सप्लीमेंट क्या मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है। आप जब तक उसके ऊपर थरो चेक नहीं कर लेते, किसी डॉक्टर से, किसी ऑथराइज फिजिशियन से पता कर सब कुछ चेक कर उसको लेना है, बिना किसी के अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं लेना है।
और अगर आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं, उसका आपको, चाहे आपने ऑथराइज आपने अथॉरिटी से पूछ कर लिया है या नहीं लिया है, आपने उस सप्लीमेंट का नाम अपने पास रखना है। जब भी डोप टेस्ट होता है आपने इन्फॉर्म करना है मैं ये सप्लीमेंट लेता हूं। कोशिश कीजिए उस सप्लीमेंट का थोड़ा सा पोर्शन अपने पास संभाल के रखिए। ये है, आप नाडा को इन वेबसाइट्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन। ट्विटर का हैंडल इज @NADA India Office, इंस्टाग्राम पे @NADA India Office, फेसबुक पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया और लिंक्डइन पे भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया है। आप चाहिए तो इनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट करें। ओके, all right, now comes any questions now till now? Abhi, any questions? Anybody has got any questions for the entire session till now what we have taken today? हाँ बोलिए। भरत, Actually, most of them have left for their training session in very less supply. नो प्रॉब्लम। जो भी है इनको कोई क्वेश्चंस हैं क्या? No. No, sir. No question. All right, guys. Thank you very much. It was a good session. So, in case you have any questions, so we have given you the links also, Facebook and Twitter handles and LinkedIn, Instagram, or otherwise you can always go to National Anti-Doping Agency. Go to contact us, and you will find our phone numbers there. In case you have any questions, you can always call us on that number. All right. All right. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you very much, Bharat. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.